Welcome to the Himmat Talks. Today we have with us a renowned astrologer, Pandit Sanjeev Srivastava. He is an internationally known Nadi astrologer and Vastu expert who has mastered in Nadi astrology and consults in over 55 plus countries. He is one of the best astro consultant trusted by people for predictions all across the globe as he is serving in 55 plus countries. He has started his career as a software engineer and later as a management professional. He has worked with top MNCs and also holds a degree in MBA. Currently, he teaches meditation and is a trainer for Art of Living Happiness program. He is also a panel astrologer with Vedic Dharma Sansthan. He has taught astrology to over hundreds of students. He also specializes in Vastu, numerology, palmistry, mantras, gemstones, and homeopathy. His various perfect and accurate predictions include the Ram Mandir, Russia Ukraine war, UP and Delhi elections, World Cup, IPL, and a lot more. He has also received an award and title of Living Legend in Divine Sciences from the Chief Minister of Uttar Pradesh, Sri Yogi Adityanath ji. Sir, I'm so pleased and honored to invite you at this platform. आज के इस सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है. Thank you so much. Thank you so much, Richa ji, for inviting me on this platform. It's really a great pleasure. बहुत खुशी की बात है कि मैं आपके दर्शकों को आप सबके सामने आया हूँ और आपके दर्शकों को से बातचीत कर पाऊँ. Thank you so much. Thank you, sir. So let's start today's session. And my first question to you is, please tell us something about yourself and your journey of becoming an astrologer. So before we start this session, Richa ji, I just pray to the lotus feet of my Gurudev Shri Shri Ravi Shankar ji. Gurur Brahma, Gurur Vishnu, Gurur Devo Maheshwaraha, Guru Sakshat Param Brahma. तस्मै श्री गुरुवे नमः. तस्मै श्री गुरुवे नमः. So my journey as an astrologer, yeah, it's a very interesting journey. I've not shared with many people, but yeah. So, my father was a very good homeopathy doctor. He was a mining engineer. He was a very good, exceptionally good actually homeopathic doctor, and a very good astrologer. So my journey started very beginning, from the childhood only. Standing beside my father, listening his talk when he's consulting people, listening his directly learning from so my childhood like that only, and passion of astrology, and I used to study a lot of books which was there in the at the home, and rather than studying the normal books of classes, I used to study the astrology books. So I started the journey long back, and the passion continues from my school days to college and in my profession. I was keep predicting, but long back, so I get in touch with so I was in Guru Tattva or Guru family since my childhood, and I get in touch with my Gurudev Shri Shri Ravi Shankar ji, and so long back he told me, astrology. So I was wondering how I can teach astrology. At that time, to be honest, I didn't have any knowledge, but I think he knew that I have something. Guru knows everything. That is the fact. And so predicting is one part, and learning astrology is one part, and teaching is one part. So I formally, learned astrology from Bharati Vidya Bhavan, then various other places. I learned Vedic astrology, then I learned various forms of astrology, and then Nadi astrology. So there are many people who give me this knowledge, but I would say that whatever I've learned from my guru, because when
when you are near the guru and you observe things, you learn a lot, you know. So that is how my journey started, and in very great journey, I started predicting, I started teaching, and teach across world, this Nadi astrology, and it is a very true that within 6 months, students start predicting more than 80-90%. That is amazing. That is not possible because even after learning astrology, predicting more than 50-60% is actually not possible. More than 50-60%, 60 or maybe 65 at some instances. But students who are learning astrology and become a professional astrologer who don't have any knowledge, that is amazing. That is, I'll say, grace. So that is how my journey started from my childhood, learning from my father, and then now teaching across world. Yeah, Richard. Thank you, sir. And we will learn from your experiences. My next question to you is कि प्लैनेट्स जो होते हैं वो हमारी बॉडी के साथ कैसे कनेक्टेड होते हैं और उनका हमारी लाइफ में क्या इम्पैक्ट होता है? हाँ, तो I would say, hope you can hear me. So planets are very deeply connected with our, you know, our physical. In Shastra it is said that yat pinde tad brahmande. जो बाहर है, जो यूनिवर्स में है, वो इस शरीर में भी है. Most importantly, your mind is connected with. It is said that moon is connected with your mind, and mind has a wider impact. So all the planets are there in your body only, in on all the chakras. So let me explain, one by one. So start with Muladhara chakra. In Muladhara chakra, we have Saturn energy. So sorry, I am Saturn. interrupting. बट द व्यूअर्स आर सेइंग कि वो हिंदी में प्रेफर करेंगे, तो आप प्लीज़ हिंदी में एक्सप्लेन करें ज़रा उन्हें। अच्छा, श्योर, श्योर, ठीक है। इससे मैं हिंदी में करता हूँ, ठीक है। थैंक यू सो मच शिक्षा जी। तो हमारे जो प्लैनेट्स हैं, वो हमारी बॉडी से बहुत डीपली कनेक्टेड है। जैसा कि मैं कहूँ कि हमारा मन जो है, वो मून से प्रभावित होता है। आप देख सकते हैं कि पूर्णमासी और अमावस्या में जो है, माइंड जो है, माइंड में बहुत ज़्यादा ख्याल या तो बहुत ज़्यादा थॉट्स आएँगे या बहुत ज़्यादा विचलित भी हो सकता है। और आप देखते हैं सागर में भी पानी कितना उछाल आता है पूर्णमासी के दिन। तो मून जो है, माइंड को गवर्न करता है। अगर मून आपकी पत्री में अच्छा है, तो आपका माइंड बहुत अच्छे शार्पली काम करता है। और मून कहीं अगर अफ्लिक्टेड है, जो कि मैं बताऊँगा क्या मतलब होता है उसका, तो कहीं न कहीं वो माइंड में जब उतना स्ट्रेंथ नहीं रहता, उतना जो सोचने की शक्ति है, कहीं-कहीं डिप्रेसिंग, और कहीं न कहीं जिसे कहते हैं ना कि वो सोचता ज़्यादा है, कम आता है, ऐसा भी हो सकता है। पर अगर हम डिटेल में समझें कि हमारे सारे प्लैनेट्स कहाँ पर हैं, किस जगह हैं शरीर में, तो मैं आपको ले चलता हूँ। तो सबसे बेस ऑफ द स्पाइन जो है, हमारा मूलाधार चक्र होता है, जहाँ पर शनि, सैटर्न जो है बेस्ड होते हैं। जब शनि जब अगर इनएक्टिव है, सपोज करो, अगर आपकी लाइफ में कहीं न कहीं शनि ग्रह का ज़्यादा प्रभाव है, तो लाइफ में कहीं न बहुत इनर्शिया रहेगा, कोई काम जो है होगा नहीं, आपको बहुत ऑब्स्टिकल्स आएँगे, किसी भी काम को करने जाएँगे तो कुछ न कुछ अड़चनें हमेशा। तो मतलब शनि कहीं न कहीं, वो चक्र कहीं न कहीं ब्लॉक है, ऐसा हो सकता है, ठीक है? तो काम आसानी से बनते नहीं हैं, हर चीज़ों में बाधाएँ आएँ, हर काम रुक के हो, मतलब शनि का कोई न कोई इम्पैक्ट है। तो उसको दूर करने के लिए अगर हम कोई शनि मंत्र यूज़ करते हैं या हनुमान चालीसा, देखिए रेमेडी के साथ-साथ आपको बता रहे हैं, तो वो बहुत फ़ायदेमंद साबित होता है। तो मूलाधारा चक्र के उपाधिष्ठान, जहाँ पर बेटर रूल करता है, क्रिएशन, प्रोक्रिएशन, क्रिएटिव एनर्जी भी रहती है, हाँ, सेक्सुअल एनर्जी भी रहती है। तो एनर्जी को बहुत सही से, तो आदमी जिसको कहीं न कहीं बहुत कहीं लस्ट में इन्वॉल्व है, तो वो अगर
चीज़ करे, क्रिएटिव करे तो उसका को चैनलाइज़ हो सकता है। एवरीथिंग इज़ अबाउट चैनलाइज़िंग द एनर्जी, ठीक है? कहीं न कहीं अगर आपको क्रिएशन, प्रोक्रिएशन में कहीं कोई इश्यूज़ हैं, कहीं न कहीं लत ज़्यादा है, तो जुपिटर को बैलेंस करने की ज़रूरत है। और जुपिटर को बैलेंस करने का सबसे अच्छा तरीका है अपने गुरु की, अपने आराध्य की आराधना पे काम करना, अपने गुरु की बातों के पे चलना। उसके ऊपर आता है सोलर प्लेक्सस, नाभि चक्र, यहाँ मंगल का वास होता है, मार्स। तो अगर सोलर प्लेक्सस या नाभि चक्र अगर कहीं बैलेंस है, तो क्या होगा? आपका डाइजेशन अच्छा नहीं होगा। आपका डाइजेशन कहीं न कहीं उदारता में कहीं न कहीं कोई कमी रहेगा, कहीं न कहीं लोभ, लालच, तो ये सब चीज़ों में कहीं न कहीं इम्बैलेंस, मतलब लालच आ गया तो ये इम्बैलेंस हो गया। उदारता तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है? तो और डाइजेशन गड़बड़ है, क्या है? मंगल के लिए सबसे अच्छी रेमेडी है हनुमान चालीसा। अगर आप हनुमान चालीसा करते हैं और आपको लगता है आपको हनुमान कांड ये सब अगर आप हैं, ठीक है? सुनने से भी बहुत प्रभाव पड़ता है। सुनने से ही, सुनना और ध्यान करना, उससे बहुत प्रभाव पड़ता है। तो उससे आपका ये डाइजेस्टिव सोलर प्लेक्सस चैनल जो है, चक्रा जो है बैलेंस होता है। उसके ऊपर आता है अनहद चक्रा, हार्ट चक्रा। हार्ट चक्र मतलब अगर दिस इज रूल बाय शुक्र ग्रह उसको रूल करता है। अगर लाइफ में कंफर्ट नहीं है, लग्जरी कम है, ऐशो आराम नहीं है उतना, बहुत जिसे कहते हैं ना, एक लग्जरी लाइफ की अगर आप अपेक्षा करते हैं कि मेरे पास एक लग्जरी लाइफ हो, कंफर्ट हो, बाहर घूमना फिरना, ये सब चीज कंफर्ट और लग्जरी से रिलेटेड जो आप सोच सकते हैं, वो सब वीनस के द्वारा ही होता है। और अगर इस चीज की कमी है तो कहीं ना कहीं वीनस चक्र यानी हार्ट चक्र ब्लॉक्ड है। देखिए, इमोशंस भी, जो प्रेम भी जो होता है ना, वो भी जिसे कहते हैं कि कहीं ना कहीं शुक्र से जुड़ा हुआ है, ठीक है? सुंदरता भी शुक्र से जुड़ी हुई है। तो अगर ये कहीं कमी है आपके लाइफ में, तो शुक्र चक्र को बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? कोई देवी की आराधना। सबसे पहले तो देखो, घर में देवियाँ हैं, उनकी रिस्पेक्ट, जिसे कहते हैं ना, उनको पूरा सम्मान देना, चाहे वो बेटी हो, चाहे वो वाइफ़ हो, चाहे वो माँ हो, उन सबका सम्मान देना बहुत इम्पोर्टेंट है। उसको करने से आपके शरीर में आप वीनस चक्र बैलेंस होता है और आपके लाइफ में लचीलापन आता है। और देवी की आराधना, दुर्गा देवी, लक्ष्मी देवी, जिनकी आराधना करना चाहें, उनका कोई मंत्र सुनते हैं और उस पे ध्यान करने से बहुत इस चक्र का बैलेंस होता है। उसके ऊपर आता है विशुद्धि चक्र, ठीक है? जो जिसकी व्हिच इज़ रूल्ड बाय मरकरी। मरकरी जो है, बुध ग्रह आप आपको बोलते हैं, उनका बुध ग्रह बहुत अच्छा होता है, ठीक है? जिन एनालिटिकल पावर बहुत अच्छा होता है, उनका बुध ग्रह बहुत अच्छा होता है। अगर कहीं स्टैमरिंग कोई करता है, एनालिटिकल पावर में कमी है, बोलने में कमी है, तो उनको अगर बुध चक्र बैलेंस करने के लिए अगर विष्णु सहस्त्रनाम सुने, तो बहुत फ़ायदा करता है, ठीक है? तो ये बुध विशुद्धि चक्र, उसके ऊपर सहस्त्रधार, सहस्त्रधार के पहले आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र इज़ रूल्ड बाय सन एंड मून। सूर्य, मून जो है वो यहीं पर आते हैं, यहीं पर उनकी एनर्जी रहती है। जब हम कहते हैं तो उनके ना एनर्जी सेंटर, इन सब चक्रों पे, एनर्जी सेंटर्स पे कुछ उनका आभा रहती हूँ। तो सन एंड मून अगर आपको कहीं न कहीं जिसे कहते हैं ध्यान नहीं होता, कहीं न कहीं आपको बहुत मेंटल स्ट्रेस रहता है, टेंशन रहती है, कि रिलेशंस आपके अच्छे नहीं रहते, या फिर जिसे कहते हैं लीडरशिप स्किल्स नहीं है, जो सन की क्वालिटी है। कहीं न कहीं आप बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं पर बढ़ नहीं पाते हैं, गवर्नमेंट से कोई रिलेशन गड़बड़ है, इस तरह की चीज़ों के लिए आप सन, मतलब ओम नमः शिवाय और आदित्य हृदय स्तोत्रम, या सूर्य को जल चढ़ाना, या सूर्य नमस्कार करना, ठीक है? ये सब से आपके ये चक्र पे जो प्लैनेट्स हैं वो बैलेंस होते हैं, और फिर आप एक अच्छा ध्यान कर सकते हैं, अच्छी चीज़ों को बढ़ा सकते हैं, अपने गवर्नमेंट से अपनी लीडरशिप स्किल्स को अच्छा कर सकते हैं। और सबसे ऊपर आता है सहजदार। सहजदार नहीं होता, बट अगर किसी को इंसोम्निया की प्रॉब्लम है, कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जहाँ जिसे कहते हैं कि अ, बिल्कुल जिसे कहते हैं नींद ही नहीं आती, बहुत ज़्यादा विचलित रहता है, तो कहीं न कहीं सहस्त्रधार चक्र में इम्बैलेंस है। और उसके लिए सबसे अच्छी जो टेक्नीक है वो ध्यान, ऊँचा ध्यान, सहस्त्रधार पे ध्यान करना, इससे वो चक्र बैलेंस होता है। तो सही चक्र जो है,
सारे चक्रों पे आप समझ लीजिए सारे प्लैनेट्स हैं और राहु और केतु बचे। राहु को हम शनि शनि के इक्विवेलेंट, केतु को शनि के इक्विवेलेंट और राहु को मार्स के इक्विवेलेंट। केतु जो है वो शनि के इक्विवेलेंट मतलब मूलाधार चक्र पे और राहु जो है मार्स सोलर प्लेक्सस पे। तो ये दोनों पे तो अगर राहु और केतु भी इम्बैलेंस है तो कहीं न कहीं ये रेमेडीज़ के देवी का हो गया या फिर राहु का कोई मंत्र हो गया या गणपति धनुष केतु के लिए बहुत फ़र्क पड़ता है। तो देखिए सारे जो प्लैनेट्स हैं, जैसे शास्त्रों में कहा गया यत् पिंडे तत् ब्रह्मांड, जो ब्रह्मांड में है वो शिव में भी है। तो ऐसा जो है आप इन सब चक्रों को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। जो भी लाइफ में डिफ़िकल्टीज़ दिखती हैं तो समझिए वो चक्र कहीं न कहीं इम्बैलेंस है और उस प्लैनेट का अगर आप कुछ मंत्र जाप जाप नहीं भी आता, अगर आप सुनते भी हैं वो मंत्र और ध्यान करते हैं, उससे बहुत फ़ायदा होता है। तो इस तरह से बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है प्लैनेट्स का आपकी लाइफ में डीपली इम्पैक्ट है। जी। थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया और हमारे कुछ व्यूअर्स हैं, उनके कुछ कमेंट्स आ रहे हैं जिसके वो गाइडेंस चाहते हैं आपसे। मैं आपसे क्वेश्चन करती हूँ। एक जस्ट अ सेकंड। अभिनव जी हैं, इनका क्वेश्चन ये करते है कि ध्यान इनको करते जी, हाँ, बोलिए, बोलिए। अभिनव जी हैं, इनका क्वेश्चन है कि इनको लास्ट 10 इयर्स से स्पाइन की प्रॉब्लम है और फ्लेक्सिबिलिटी भी नहीं है। इनकी जॉब भी चली गई है, तो इसके लिए क्या रेमेडी हो सकती है? कैसे इस प्रॉब्लम से ये बाहर आएँ? बहुत बढ़िया बात कही आपने स्पाइन ना, तो कहीं न कहीं ये जी, अ, मूलाधारा चक्र से ही इम्पैक्ट है, बेस ऑफ द स्पाइन से ही गड़बड़ है, स्पाइन से। मैं आपको ये बोलूँगा कि आप थोड़ा हनुमान चालीसा करें, ठीक है? ठीक है? हनुमान चालीसा करें और कहूँगा कि आप थोड़ा एक पद्म साधना है, ठीक है? आप यूट्यूब पे गूगल करिएगा पद्म साधना, इट्स अ वेरी पावरफुल योगा आसन है, पर जितना आप कर पाएँ सहजता से, मैंने बहुत सारे केसेज़ हैं जहाँ लोग समझ लीजिए कि बिल्कुल हल्का-हल्का चल भी नहीं पाते, बहुत मुश्किल से चल पाते थे। उन लोगों ने धीरे-धीरे पद्म साधना को अपनाया और पूरा अच्छे वॉक करने लगे और उनकी जो कमर है वो सॉलिड हो गई। तो पद्म साधना एक यूट्यूब पे मिल जाएगा, प्रॉपर्ली है। वो वैसे तो पूरा गाइडेंस में जाता है, बट अगर आप कहीं नहीं जा सकते उसको यूट्यूब में लिंक है, आप उसको करके जितना आसन आप आराम से कर सकते हैं, उतना करिएगा। धीरे-धीरे आप 2, 4, 6 महीने में जब पूरे आसन करने लग जाइएगा, तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो वो ज़रूर करिए और हनुमान चालीसा, सुंदरकांड ये सब पढ़िए, इससे आपको इसमें आराम मिलेगा। जी। जी, थैंक यू सर। आई होप अभिनव जी आपको आपका रिप्लाई मिल गया है। काइंडली इन रेमेडीज़ पे वर्क कीजिए, डेफ़िनेटली आपको रिज़ल्ट्स मिलेंगे। यस सर, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आप हमें ये बताएँ कि नाड़ी एस्ट्रोलॉजी और वैदिक एस्ट्रोलॉजी में क्या डिफ़रेंस होती है? हाँ जी, हाँ जी। बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बेसिक क्वेश्चन। देखिए नाड़ी एस्ट्रोलॉजी के सबसे पहले तो आता है कि एस्ट्रोलॉजी क्या है? सबसे पहले तो क्वेश्चन ही आ जाता है कि एस्ट्रोलॉजी है क्या? एस्ट्रोलॉजी जैसे एस्ट्रोलॉजी समझ में आता है, जैसा मैंने सीखा है गुरुकुल से, तो एस्ट्रोलॉजी इज़ अ जीपीएस फॉर लाइफ, ठीक है? जितने इवेंट्स होते हैं, कितने इवेंट्स हो लाइफ में, बर्थ से लेकर आप समझ लीजिए जब जब आपकी लाइफ शुरू होती है और लाइफ जब खत्म होती है, उसके बीच में बहुत सारे इवेंट हैं। आपका एजुकेशन एस्ट्रोलॉजी एज़ अ जीपीएस काम करता है। जैसे गूगल को आप यूज़ करते हैं इस प्लेस से उस प्लेस में जाने, वैसे ही एस्ट्रोलॉजी आपकी वेरियस इवेंट्स ऑफ द लाइफ में बहुत हेल्प करता है। तो हर किसी को लाइफ में अपनी एस्ट्रोलॉजी एक बार तो ज़रूर चेक करानी चाहिए विद सम गुड एस्ट्रोलॉजर, ठीक है? ताकि आपको हर ईयर करानी चाहिए, मैं तो कहता हूँ कि आपको ईयर का पता हो, अपने टाइम का पता हो। एस्ट्रोलॉजी इज़ व्हाट? ऑल अबाउट टाइम, वेदर इज़ द टाइम इज़ गुड, आपका टाइम अच्छा है या खराब है। अगर अच्छा टाइम है, तो उस टाइम में बहुत आप काम कर सकते हैं, रिस्क ले सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, जॉब चेंज कर सकते हैं। अगर टाइम खराब है, तो आप उसको थोड़ा-सा सेटल होके ध्यान, साधना और उन सब चीज़ों से उसको बेटर कर सकते हैं। तो टाइम बहुत इम्पोर्टेंट है और एस्ट्रोलॉजर क्या होता है एक्चुअली में? एस्ट्रोलॉजर इज़ अ टाइम रीडर और अ कर्मा रीडर आई वुड से, यू नो टाइम के बारे में उसको ज्ञान बहुत अच्छा होता है, जो भी अच्छा एस्ट्रोलॉजर होगा। और पत्री में लिखा होता है वो क्या है? वो कर्मा ही है एक्चुअली, जिसको वो रीड करके बताता है कि कहीं न कहीं ये चीज़ें हैं।
अब बात आई कि नाड़ी एस्ट्रोलॉजी क्या है और वैदिक एस्ट्रोलॉजी क्या है। देखिए, वैदिक एस्ट्रोलॉजी, अच्छा, एस्ट्रोलॉजी सबसे पहले शुरू कहाँ से हुआ? ये शिवा से आया। टाइमलाइन जिसे कहते हैं ना, ये टाइमलाइन है। तो टाइम है उन्हीं से आया, उनसे सप्तऋषियों पे आया। सप्तऋषि, व्यासा, भोगर, कौशिका, वाल्मीकि, जितने भी ऋषिज आए, ठीक है, भृगु ऋषि, तो इनसे तो भृगु ऋषि से जो है ये नाड़ी एस्ट्रोलॉजी आया एक्चुअली, ठीक है। तो 2 ऋषि हुए, भृगु ऋषि और अगस्त्य ऋषि। तो जो आपने देखा होगा साउथ में जो लिपि पत्र पे लिखा रहता है और वो आपको देखते हैं, तमिल स्क्रिप्ट्स लिखी होती हैं, उसको जाके पढ़ते हैं, तो पत्रों में लिखा रहता है, उसको, वो जो है वो लीनिएज जो है वो अगस्त्य ऋषि का है। ऋषियों ने आपकी, जिसे कहते हैं ना, आप फॉर द मैनकाइंड, की मैनकाइंड में इतना प्रॉब्लम था, इतना कंसर्न था, तो उन्होंने लिखा कि मैनकाइंड की हेल्प करने के लिए उन्होंने एस्ट्रोलॉजी का, जिसे कहते हैं, सब चीज़ें, सबका भविष्य पहले ही लिख दिया कि इसकी लाइफ में ऐसे ये सब चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है? अच्छा, ये बात भृगु ऋषि ने, जो मैं करता हूँ वो नाड़ी नक्षत्र करता हूँ। उसमें पत्री नहीं, उसमें आपका डेट, टाइम, प्लेस ही चाहिए होता है और उसके बेस पे आप प्रेडिक्शन करते हैं। नाउ वैदिक एस्ट्रोलॉजी तो फाउंडेशन है जिसे कहते हैं। पर प्रेडिक्शन के लिए सबसे अच्छी, जो पूरे यूनिवर्स में मैं कहूँगा सबसे अच्छी, जो अगर कुछ पद्धति है, तो वो नाड़ी एस्ट्रोलॉजी। और नाड़ी में भी बहुत नाड़ियाँ, 150 तक नाड़ियाँ हैं। ध्रुव नाड़ी, स्थिर नाड़ी, चंद्रकला नाड़ी, बहुत सारी तरह की नाड़ियाँ हैं। तो उसमें भी बेस्ट जो नाड़ी का, जो मेरा अनुभव में आया, क्योंकि मैंने बहुत तरह की नाड़ी पढ़ी, तो मेरे अनुभव में जो बेस्ट आया वो नाड़ी नक्षत्र आया, जो कि बेस्ड ऑन डाइट, टाइम, प्लेस ऑफ बर्थ। क्यों? क्योंकि इसमें एक्यूरेसी आप समझिए 90-95% आ जाती है, जबकि एस्ट्रोलॉजी में आप एक्यूरेसी 60-65% से ज़्यादा कर ही नहीं सकते। कितना भी कोई बढ़िया एस्ट्रोलॉजर हो, आप 60-65% से जा ही नहीं सकते। बहुत रेयर में एक आध कोई हो, लाखों करोड़ों में, तो 70% जाएगा, जा ही नहीं सकता। 60-65, ये, और ये मैं नहीं कह रहा, ये कहते हैं, मैंने उनसे सुना है जो लोग 40-50 साल से और जनरेशन से एस्ट्रोलॉजी प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो लोग कहते हैं कि भाई 60% से अगर ऊपर हुआ तो वो फेक है। ऐसा बोलते थे। जब हमने नाड़ी एस्ट्रोलॉजी उनको बता रही, इतनी परफेक्ट प्रेडिक्शन की, लाइक प्रेडिक्शंस आर लाइक 90-95%। मतलब आप अगर मेरी प्रेडिक्शन देखें, ट्विटर पे हैं, बहुत सारी करता हूँ मैं, संजीवन स्कोर एस्ट्रो पे, तो आप देखिए प्रेडिक्शन की 97% है। इतनी सारी ऋचा जी ने जो बताई, बहुत सारी प्रेडिक्शन, और एट अ पर्सनल लेवल भी जब लोग कंसल्ट करते हैं, तो इसकी एक्यूरेसी नहीं है। मतलब जो मंथ बताया, जो हफ्ता बताया, अगर दिन भी कभी हमें बताना था, तो उस दिन पे काम हो। प्रूफ ना, देखिए, बोलने से नहीं होता, प्रूफ चाहिए होता है सर किसी को। प्रूफ ट्विटर पे हज़ारों पड़े हैं, ठीक है? कि जब टाइम से पहले हमने बोला और जितना बोला उतना ही हुआ। तो ये ग्रेस है, मालिक की दया है, क्योंकि हमने भी 10% एक्यूरेसी कोई दुनिया में, ठीक है? अब तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी एक फाउंडेशन, पर प्रेडिक्शन के लिए अगर कुछ करना हो, तो नाड़ी नक्षत्र जो है वो बहुत एक्यूरेट, क्योंकि अगर आपको एक्यूरेसी से पता लग जाए, तो यार इस महीने या इस साल में, इस महीने में ये चीज़ होनी है, वो फैमिली प्लानिंग हुई, वो जॉब चेंज हुआ, चाहे बिज़नेस स्टार्ट हुआ, तो बहुत अच्छा डायरेक्शन मिल जाता है। तो बहुत चीज़ें क्लियर पता लग जाती हैं। तो आई वुड से ये डिफरेंस है। देखिए, दोनों ही पद्धतियाँ अच्छी हैं, किसी पद्धति को हम बुरा नहीं बोल सकते, क्योंकि वेदोलॉजी में जो नॉलेज है वो वास्ट है। पर समहाउ उसकी जो टेक्नोलॉजी, क्योंकि मैं टेक्नोलॉजी का बंदा हूँ, टेक्नोलॉजी इतनी जल्दी कोई कंप्रहेंड नहीं कर सकता। उसको शायद 50 साल लग जाएँ उसको कंप्रहेंड एक्यूरेसी पहुँचने लगे, जबकि हम नाड़ी बहुत, क्योंकि ये बेस्ड ऑन नक्षत्र है। देखिए, वैदिक में क्या करते हैं हम जो करते हैं वो प्लैनेट है, एस्पेक्ट है, राशि है, इसके बोलते हैं, ये यहाँ हुआ है, इसमें ये एस्पेक्ट है, इसमें ये घर में, ये 4-5 चीज़ें बोलते हैं। हम नक्षत्र को टच ही नहीं करते। नाड़ी में हम नक्षत्र पे जाते हैं, फिर नक्षत्र के जो हमें उन पे जाते हैं। तो वी गो एटलीस्ट 3 लेवल डाउन। तो जो प्लैनेट कहता है वो नहीं होता, जो नक्षत्र कहता है, नक्षत्र का स्वामी कहता है, वो होता है। दैट्स व्हाई एक्यूरेसी इज सो हाई, ठीक है? अगर हम टेक्निकल डिटेल में जाएँ, तो एक्यूरेसी के लिए आपको नक्षत्रों को देखना ही पड़ता है। अगर आपको पुराने ज़माने में जब आप कहीं पढ़े हैं लिटरेचर में, तो जो भी प्रेडिक्शन करते थे, वो बेस पे करते थे। कभी भी जो है प्लैनेट की बेस पे पहले प्रेडिक्शन नहीं होती थी। ये तो लास्ट 200-300 या सालों में कुछ ट्रेंड चालू हुआ। अदरवाइज़ इफ यू go back in the era, it was only nakshatra when people used to, where the astrologers or the learned people used to, और वो एकदम परफेक्ट होता है। बारिश होनी है, कब क्या होना है, कब कौन सा राज्य में क्या करना है,
राजा का कैसे रहेगा, सब बहुत परफेक्टली। और उससे राजा को भी हेल्प मिलती थी, और जितने भी जो भी धनवान थे, जो भी बिजनेस करते थे, उनको भी बहुत हेल्प मिलती थी। तो मैं ये कहूँगा कि नाड़ी नक्षत्र से जैसा परफेक्ट टूल मैंने आज तक नहीं देखा। ये भी टूल ही है, मैं कहूँगा साइंटिफिक टूल जैसे और सब टूल हैं, ये भी एक टूल है जिसकी हमें हेल्प लेनी चाहिए। अगर मुझे पता है मेरा टाइम कब अच्छा है और कब मुझे काम करना चाहिए, बहुत अच्छी सक्सेस मिल सकती है, तो वो आपको सिर्फ ये नक्षत्र बता सकता है। जी। थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। और हमारे बहुत सारे व्यूअर्स की जो क्वेरीज आ रही हैं वो रिलेटेड टू मैरिज हैं, हम उनके क्वेश्चंस पे भी आएंगे। एक जया जी हैं, उनका क्वेश्चन ये है कि उनकी शादी में काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, शादी ठीक होकर के भी टूट जाती है, तो इसके लिए क्या रेमेडी ये कर सकती हैं? देखिए, शादी में आप ये समझिए, बहुत हार्ड होगा। देखिए, लाइफ में तो कहीं न कहीं वो कॉन्फ्लिक्ट कब होता है? कॉन्फ्लिक्ट 2 लोगों के बीच में होता है, हस्बैंड एंड वाइफ। एक बंदे से कभी कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता है ना। तो अगर लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट है, तो देखिए 2-3 वजह से, रीज़न से होता है, ठीक है? आपकी सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न, अगर मैं लाइफ में कुछ फेस कर रहा हूँ, ठीक है? तो वो क्यों फेस कर रहा हूँ? क्योंकि समवेयर इट इज़ रिटन इन माय स्टार्स कि आई हैव टू फेस दिस। आप ये समझ लीजिए, बहुत कड़वा सच। अगर मैं लाइफ में कुछ फेस कर रहा हूँ ना, ये मेरी लाइफ की, मैं बोलूँगा तो वो पति जो है वो मिसबिहेव करता है, वो अच्छा नहीं है, वो ये गड़बड़ है। 99% ना, कहीं न कहीं आपके स्टार्स में कुछ प्रॉब्लम है, तभी वो ऐसा है। मतलब तभी आपको ऐसा पति मिला, ऐसी सिचुएशन। आपके स्टार्स अच्छे होते तो वो होता नहीं, पहली बात। अब स्टार्स गड़बड़ है, इसके लिए क्या करें? तो 3 तरह की चीज़ें होती हैं, 3 तरह की एनर्जीज़ मैं कहता हूँ, मैं एनर्जीज़ में बात करता हूँ, 6, 8 और 12। जब ये कनेक्ट होती है एनर्जी, 6 होता है डिज़ीज़, डेथ, 8 होता है ऑब्स्टेकल, 12th होता है लॉस ऑफ एक्सपेंडिचर, आउटफ्लो। अब डिज़ीज़ किसी को, डेथ किसी को, लिटिगेशन हुआ, 6th हाउस हुआ, तो उसको सेवा करनी चाहिए। 8 प्रोफेशन में ऑब्स्टेकल, तो क्या हुआ ऑब्स्टेकल के लिए? क्या, या तो ऑब्स्टेकल योगा मैट पे निकालो या अपनी लाइफ में जियो। यू हैव टू चैनलाइज और ट्रांसफॉर्म द एनर्जी। और ये सब पे, सिर्फ मैरिज नहीं, हर चीज पे एस्पेक्ट्स में आपकी गोल। तो आप जो है कहीं ना कहीं इस चीज को समझिए कि थोड़ा अगर ऑब्स्टिकल्स में फेस कर रही हूँ तो मुझे उसको चैनलाइज करना है। योगा, प्राणायाम, ध्यान जरूर करिए। 12th हाउस का लॉसेस, एक्सपेंडिचर, रिलेशन का लॉस, मन का लॉस, तन का लॉस, क्या करना है? थोड़ा सा कोई स्पिरिचुअल को, कोई ध्यान सिखाते हैं, कोई स्पिरिचुअल कोर्स सिखाते हैं। देखिए, मैं 8 से जुड़ा हूँ, तो मैं बोलता हूँ सुदर्शन क्रिया सीखो, साइलेंस कोर्स करो, या बहुत सारे हमारे चैनल पे भी बहुत चीज़ें सिखाते हैं, तो सीखिए। अगर ध्यान, साधना ये सब करिएगा तो लाइफ में थोड़ी स्टेबिलिटी आएगी। मैरिज के लिए क्या करना है? मैरिज के लिए एक सूत्र सिंपल समझ लीजिए। देखिए, आर्गुमेंट 2 लोगों के बीच में होती है, तो जब पति बोले आप चुप रहिए, आप बोले तो पति चुप रहे, ऐसा कुछ इंतजाम कर लीजिए। मतलब एक टाइम में एक ही बोले, 2 नहीं बोले, ठीक है? तो क्या है कि आर्गुमेंट जब नहीं होगा और कुछ बात से डिसएग्रीमेंट भी, उसको शांति से बोला जाए तो बहुत अच्छा। पर जब एक साथ दोनों नहीं बोले, ये बहुत ही बेसिक और फंडामेंटल सूत्र है। एस्ट्रोलॉजी से पहले कॉमन सेंस, ठीक है? अच्छा, अब एस्ट्रोलॉजी वाइज़ अगर देखा जाए, कहीं न कहीं प्रेम की कमी है, केयर की कमी है, तभी वो है, राइट? एक्सेप्टेंस की कमी है, प्रेम की कमी है। मैं कहूँगा कि भई अगर कुछ ऐसा है तो बहुत ज़्यादा, बट पहले तो ये 2 सूत्र अपनाइए, ध्यान करिए, साधना करिए, सुदर्शन क्रिया या जो भी साधना चाहते हैं उसे सीखिए, ठीक है? दूसरा, आर्गुमेंट में मत पड़िए, हमेशा एक बार में एक बात, ठीक है? तो उसके बाद भी अगर लगता है कुछ प्रॉब्लम, एस्ट्रोलॉजी कंसल्ट करिए, क्योंकि वो दोनों के डेट टाइम प्लेस देख भाई क्या हो सकता है, और मतलब उससे फिर आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। मैं कहूँगा ध्यान ज़रूर करिए, ध्यान स्टार्ट करिए रोज़ाना। और आई वुड से आप थोड़ा-सा अम, लक्ष्मी अष्टकम सुनना शुरू करिए, ठीक है? ये मंत्र है लक्ष्मी अष्टकम, और लक्ष्मी अष्टकम क्या, हर तरह की वेल्थ, तो वेल्थ है, हेल्थ भी वेल्थ है, धन भी वेल्थ है, हर तरह की वेल्थ। तो लक्ष्मी अष्टकम सुनिए, थोड़ा ध्यान करिए, थोड़ा विष्णु सहस्त्रनाम सुनिए, बहुत अच्छी चैंटिंग है, और ध्यान करिए। इससे आपकी मैरिज लाइफ में बहुत बहुत स्टेबिलिटी आनी चाहिए। पर आपको अगर रुकता है तो कंसल्ट ज़रूर करिए। जी, ऋचा जी। जी, थैंक यू सर। इससे ही रिलेटेड एक और क्वेश्चन है।
बहुत लोग मांगलिक दोष से परेशान होते हैं, तो इसका क्या इम्पैक्ट होता है मैरिज पे और इसकी क्या रेमेडी हो सकती है? देखिए ना, एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है मैं कहूँगा, ठीक है? कहा जाता है कि मंगल जो है अगर 6 ग्रह में आता है, तो आप उससे शादी नहीं कर सकते या आपके चार्ट में दोष है, तो आप ये पूजा कराइए, खुजा दोष है, मंगल दोष है। तो मैं आपको असलियत बताता हूँ। देखिए ये दोष वगैरह कुछ भी नहीं, ठीक है? ये दोष कोई है ही नहीं, टू बी ऑनेस्ट। ये अब लोगों ने कैसे क्रिएट किया, क्या क्रिएट किया, इस पे मैं नहीं जाऊँगा, बट मैं 2 चीज़ें बताना चाहूँगा आपको। एक तो 28 साल के बाद वैसे ही मांगलिक दोष जो है खत्म हो जाता है, अगर मैच मेकिंग में या शादी हम देखते हैं। और बोला जाता है मंगल दोष क्यों बोला जाता है कि भाई मंगल अगर गड़बड़ है तो स्ट्रेंथ, वैलर मंगल कारक होता है, कहीं-कहीं कहीं वो एनर्जी है, सेक्सुअल एनर्जी है या स्ट्रेंथ है, उसमें कहीं मिसमैच है। बट ये नहीं है। देखिए, अगर आपका मंगल भी खराब है और बाकी के 8 प्लैनेट ठीक हैं, तो आपकी मैरिड लाइफ में कोई प्रभाव, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। समझिए लेमैन की जैसे समझाता हूँ कि हर प्लैनेट आपकी लाइफ में 2 दिन की 30 दिन में 9 प्लैनेट, 1 महीना जो है उसमें 30 दिन में 9 प्लैनेट डिवाइड हो गए। हर प्लैनेट का 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन ऐसे आता है। तो अगर मंगल खराब भी हुआ तो 2 दिन खराब हुए ना, 3 दिन का भी लड़ाई झगड़ा छोटा-मोटा कुछ आर्गुमेंट तो हर किसी की लाइफ में होता है। बाकी के 20-25 दिन अच्छे ना, कोई दिक्कत नहीं। प्रॉब्लम ये है कि लोगों को नहीं समझ में आता तो मंगल दोष है। अगर कोई बोलता है क्या कॉन्फ्लिक्ट है, कुछ पकड़ नहीं पाता तो बोलता है मंगल को ब्लेम कर देते हैं या शनि करते हैं, ये प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम नहीं है। आपकी लाइफ में जब जो बॉन्डिंग एनर्जी है ना वो कम होती है ना, देन इट क्रिएट्स प्रॉब्लम। तब वो वाइफ हस्बैंड वाइफ में कॉन्फ्लिक्ट करना होते हैं। 2, 7 और 11 ये अगर कम है आपकी लाइफ में तो फिजिकल, इमोशनल, मेंटल ये सब मैच कम होगा, ये सब कंपैटिबिलिटी कम होगी। तो आपको अगर कोई बोलता भी है तो आपको ध्यान नहीं देने की ज़रूरत है। ना मंगल 1, 2, 6, 8 ऐसे 6 हाउसेज़ में अगर आता है मंगल तो उसको हम बोलते हैं 2, 6 1, 2, 7, 8 8, 12 ऐसे करके 6 हाउसेज़ में आता है, तो हम बोलते हैं ये मंगल दोष है, व्हिच इज़ नॉट द राइट थिंग। तो इस चीज़ को बिल्कुल इग्नोर करें, मैं कह रहा हूँ थोड़ा-सा ध्यान करें, तो ये सब दोष अपने आप खत्म हो जाता है, ठीक है? थोड़ा भाई अगर कुछ मंगल इधर-उधर भी है, गड़बड़ भी है, हनुमान जी की पूजा कर लें, हनुमान चालीसा बोल लें, दैट्स गुड एनफ, ठीक है? हाँ जी। जी, इससे ही रिलेटेड एक और क्वेश्चन है सर, काल सर्प दोष क्या होती है और इसको कैसे ठीक किया जा सकता है? देखिए क्या है कि कल जो है एस्ट्रोलॉजर किसी के पास चले जाए तो कुंडली देखेगा, उसको जब कुछ नहीं आता या वो बेसिक चीज़ें है और बोलता है अरे राहु केतु के सारे एक तरफ खालसा देश में होता क्या है या राहु और केतु के सारे प्लैनेट या तो राइट साइड या लेफ्ट साइड भी एक साइड होता है, उसको हम बोलते हैं ये काल सर्प दोष आ गया, कोई काल सर्प योग भी होता है, वो भी बात करते हैं। बट देखिए ये दोष हो, योग हो, कुछ भी हो, ये सब में नहीं फँसना है, ये सब फँसने वाली बातें। आप बोलेंगे ये कैसे बोल रहे हैं? हाँ, क्यों? क्योंकि सपोज़ आपको रेमेडी यूज़ करता है कि भाई आप चले जाइए उज्जैन, महाकाल के उधर चले जाइए, आप ये रेमेडी कर लीजिए, वो रेमेडी कर लीजिए, सब ठीक हो जाए। मैं कहता हूँ मेरे पास हज़ारों लोग आते हैं, जहाँ बोलते हैं रेमेडी करके आए हैं, पर फिर सिचुएशन वैसी की वैसी है। और जब मैं उनको बता के कोई रेमेडी देता हूँ, देन आई गेट द फीडबैक इन फ्यू वीक्स और मंथ्स कि चीज़ें काफ़ी बेटर हैं। तो ये ना गलत धारणा और गलत चीज़ों में नहीं फँसते, ये सब मैं कह रहा हूँ ये लैक ऑफ नॉलेज है, जिसे कहा जाए काल सब दोष बना दिया, काल सब मांगलिक दोष बना दिया, ये लैक ऑफ नॉलेज है। तो कहीं न कहीं इन सब चीज़ों को और सपोज़ करो कोई बोलता भी है, ठीक है? जैसे मैंने कहा अगर दोष है हनुमान जी की पूजा करिए, सब ठीक है, गणपति जी की पूजा करिए, सब ठीक है। दूसरा क्या है अगर काल सर्प योग है, आप थोड़ा हो सकता है प्रकृति को कभी आपने नुकसान हो किसी बर्थ में या कहीं पर भी, तो थोड़े पेड़-पौधे, थोड़ा एनवायरनमेंट का ध्यान रखिए। इसको कहीं मंदिर में आके कुछ चढ़ाना, कुछ दारू ये चढ़ाना, वो करना, काल भैरव में जाना, इन सब से कुछ नहीं होने वाला। हमारे पास बहुत सारे लोग आते हैं। विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द गॉड्स, इन सब से कोई होने वाला, ठीक है? होगा किससे? ध्यान से और साधना से, ठीक है? अब जैसे मैं बोला था किसने कि ध्यान होता, तो ध्यान जी एक रिलैक्स की टेक्निक
टेक्निक है। ध्यान में फोकस नहीं करना होता है, बोलते हैं अरे इधर फोकस करो, ध्यान इज रिलैक्सिंग विद इन सेल्फ। जब रिलैक्स करेंगे, हाँ, ज़्यादातर क्या समझा है, ध्यान इज फोकसिंग, कॉन्सेंट्रेटिंग। एक्चुअली ध्यान इज अपोजिट। ध्यान इज एक्सेप्टिंग द ऑल द थिंग्स अराउंड अस एंड रिलैक्सिंग। आप फोकस करेंगे तो सर दर्द हो ही जाएगा। इससे रिलैक्स करिए। मैं कह रहा हूँ शुरू में गाइडेड मेडिटेशन करें। पंचकोशा मेडिटेशन है, श्री रविशंकर जी ने, आप गूगल करिएगा, यूट्यूब में मिलेगा आपको। और भी बहुत सारे मेडिटेशन हैं, संजीव जी बहुत सारे मेडिटेशन कराते हैं, तो बहुत सारे संजीव मलिक साहब, तो बहुत सारे मेडिटेशन आप ज्वाइन करिए, ठीक है। तो आप मेडिटेशन आप देखिएगा, कर पाएंगे और अच्छा हो, तो ये नहीं फंसना है। हाँ जी सर, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक हमारे व्यूअर हैं, उनका क्वेश्चन ये है कि उनकी अभी जुपिटर की दशा चल रही है, तो इसको कैसे ठीक करें एक अच्छी शनि दशा के लिए? हाँ, देखिए जुपिटर की चल रही है, तो अगर जुपिटर देखिए 3 तरह के पहले समझिए टाइमलाइन्स होती हैं। महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतरदशा। महादशा टेल्स यू द बिगर पिक्चर ऑफ द लाइफ, मतलब तेरा घर, घोड़ा, गाड़ी, रहना-सहना ये सब कैसा है, कम्फर्ट कैसा है, लग्ज़री कैसी, ये महादशा डिसाइड करती है। अंतर और प्रत्यंतर मतलब अभी मेरी लाइफ में क्या हो रहा है, मेरी जॉब मिल रही है, मुझे दिक्कत हो रही है, मुझे फाइनेंशियल में, मेरी मैरिज में दिक्कत है। तो महादशा बिगर पिक्चर लाइफ, ठीक है? तो अगर आपको लगता है आपकी ग्रोथ नहीं है, आप जितना कमा सकते हैं या जितना आपका स्टेटस होता है, उतना नहीं हो रहा, तो कहीं न कहीं महादशा को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। तो अगर जुपिटर की महादशा है, तो आपको कहीं न कहीं गुरु की आज्ञा करना, ठीक है? गुरुमुख होना, गुरु के वचनों का पालन करना, गुरुमुख होना और गुरु पूजनी है या गुरु पादुका स्तोत्रम को सुनने से बहुत फ़र्क पड़ता है, ठीक? इससे आपकी महादशा, तो ध्यान करिए, थोड़ा साधना करिए, तो गुरुमुख बनिए, किसी को गुरु अपनी लाइफ में लाइए, तो जुपिटर की दशा बहुत अच्छी हो सके। और शनि के लिए हनुमान चालीसा। अब देख, सिर्फ प्लैनेट के बेस पे कहने से महादशा तो बात नहीं बनती। बेटर अगर आपको सही प्लानिंग करनी है, बेटर यू रीच आउट टू सम गुड एस्ट्रोलॉजर एंड गेट व्यू। बट हाँ, मैं ये बोलूँगा कि हाँ, थोड़ा-सा अगर आप शनि के लिए हनुमान चालीसा या शनि मंत्र सुनते हैं, ध्यान करते हैं, गुरु के लिए गुरु की बात, गुरुमुख होते हैं, गुरु के वचनों का पालन करते हैं, सत्संग करते हैं, तो आपकी महादशा बहुत, और आपका आने वाला ध्यान करते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट है, अगर वो करते हैं तो आपकी टाइम अच्छा हो सकता है। थैंक यू अब किससे सर। पूछा, किसी ब्रह्मचार्य दोष हो, तो अभी जैसे मेरे सामने आ रहे हैं कुछ-कुछ क्वेश्चन, तो मैं देख रहा हूँ। भाई अच्छा। ब्रह्मचार्य दोष, इन सब दोषों पे ना यकीन ना, ठीक है? ब्रह्मचार्य दोष मुझे नहीं मालूम क्या, यू नो किस चीज़ को आपने कैसे क्यों बोला है आपको, बट मैं बोलूँगा इन सब चीज़ों पे ध्यान ना दें, ठीक है? आपको अगर चाहिए कि भाई ब्रह्मचार्य दोष मतलब आप ब्रह्मचार्य रहना चाहते हैं या ब्रह्मचार्य नहीं रहना चाहते, उसके अकॉर्डिंग आप काम करिए, ठीक है? सपोज़ करो आप ब्रह्मचार्य रहना चाहते हैं, तो फिर नियमों का प्रॉपर चैनल से जाइए, गुरुकुल में जाइए, सीखिए, समझिए, ठीक है? और शादी के मार्ग पे चलना चाहते हैं, गृहस्थ आश्रम में चलना चाहते हैं, तो उस हिसाब से अपनी लाइफ का इन दोषों पे देखो, आधा दोष, आधे से छोड़िए, 90% ऑफ दोषों का कोई मतलब ही नहीं होता, ठीक है? आपकी लाइफ गवर्न करती है आपके टाइमलाइन्स पे। व्हाटएवर इज़ द टाइम, सेम थिंग हैपेंस इन द ह्यूमन लाइफ। जैसा भी आपके प्लैनेट्स, ग्रह की एनर्जी होती है, एग्ज़ैक्टली वैसा डिट्टो, डेट बाय डेट हो रहा था, मैं कहता हूँ। जैसी डेट चेंज होती है, वैसी कोई इवेंट हो जाता है, इतना पावरफुल है। तो दोषों का और योगा का, कोई बोलेगा राजयोग, विपरीत योग, जो ठेला चला रहा है उसके भी राजयोग है। तो ऐसा ही सब चीज़ों में मत फँसिए, वो पता नहीं कब आएगा। दुकान पे है उसका भी राजयोग है, और जो उसमें है उसका, तो इन सब चीज़ों में फँसिए मत। अपने कर्म पे सबसे कर्म है, कर्म करिए, गुरु की शरण में रहिए, मेहनत करिए, क्यों नहीं होगा काम? क्यों नहीं आप अपना लक्ष्य प्राप्त कर पाएँगे? ठीक है? कर्म प्रधान विश्व रच राखा, तो कर्म करना बहुत ज़रूरी है। अपना कर्म रखिएगा तो अपना अच्छे बना पाइए। जी। जी सर, थैंक यू। मूविंग टू द नेक्स्ट जी सर, क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्यों? एस्ट्रोलॉजी, जो हमारी लाइफ के इवेंट्स होते हैं, क्या वो प्रीडेस्टाइन्ड होते हैं? एंड व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन कर्मा एंड डेस्टिनी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इनफैक्ट डिस्कशन के बाद यही क्वेश्चन ही
बताना था कि कर्मा, जैसे मैंने कर्म की बात की, तो देखिए कर्मा और डेस्टिनी, लाइफ इज़ अ मिक्स ऑफ बोथ। जैसा गुरुदेव कहते हैं कि आप अपनी आप अपनी हाइट को ना, आपकी हाइट जो है आपका, ठीक है? तो हाइट इज़ व्हाट डेस्टिनी, बट वेट जो है आपके हाथ में, तो वेट इज़ व्हाट कर्म, ठीक है? तो कुछ चीज़ें लाइफ में फिक्स हैं, कुछ चीज़ें अपने कर्म करने से मिलती हैं। भई आप जहाँ पैदा हुए, जो एनवायरनमेंट है, माँ-बाप हैं, रिलेशनशिप है, ये बहुत चीज़ें फिक्स है, यू कांट चेंज। और कुछ चीज़ें आप अपने कर्मों से चेंज कर सकते हैं, ठीक है? ऐसा, तो लाइफ इज़ अ मिक्स ऑफ बोथ। एक अनदर पर्सपेक्टिव भी है, जैसे हम जब इतना पृथ्वी देखते हैं और हम देखते हैं कि लाइफ ऑलमोस्ट चीज़ें हम कहते हैं भले ही कि भई मैंने किया, एक और पर्सपेक्टिव है। पहला पर्सपेक्टिव है और ये भी राइट है। मैंने किया, बट जब चार्ट में देखते हैं वो ऑलरेडी आपके चार्ट में होना ही था, ठीक है? आपके चार्ट नहीं था। पर अगर आप सोचें किसी के पास आपके चार्ट में हो, अगर आपका जॉब चेंज, ठीक है? बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम करें। कर्म करने से आप उसको एनहांस कर पाते हैं, आप उसको बढ़ा पाते हैं, आप उसको अच्छा कर पाते हैं। अगर मेरे कर्म में लिखा है यार मुझे ठोकर खानी है, पर या मेरे लग्न में खाने का सपना किया, तो तीर ज़रूर लगेगा, पर वो पे लगेगा और चला जाएगा, ठीक है? तो कर्म अपना, हाँ, नहीं का प्रॉब्लम कोई बात नहीं, मैं वापस बोल रहा था कि जगह है, कर्म अपनी जगह है, 90% ऑफ द थिंग्स आर फिक्स्ड इन द लाइफ, बट कर्म करने से हम चीज़ों को और अच्छा कर सकते हैं, ठीक है? या फिर कोई खराब, सपोज़ करो, मैं कहता हूँ सपोज़ 12th हाउस इज़ लॉस ऑफ हॉस्पिटल भी होता है, तो हम बोलते हैं भई या तो ये तो बहुत गड़बड़ हो रही है, तो हॉस्पिटल विज़िट लगने पड़ रही है, वही आदमी आश्रम चला जाता है, घूम फिर आता है, तो क्या हॉस्पिटल का कर्मा खत्म हो जाता है? तो 12th हाउस इज़ आश्रम ऑल्सो। सो आप एनर्जी को कैसे चैनलाइज़ करते हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है? सेवा है, साधना है, कोर्सेज़ हैं, स्पिरिचुअल कोर्सेज़ करने से आपकी एनर्जी चैनलाइज़ होती है। कर्म, डेस्टिनी अपनी जगह है, कर्म अपनी जगह है, दोनों का मिक्सचर ही लाइफ है। भगवान ने हमको फ्री विल दे रखी है ना, हम जैसा चाहे सोच सकते हैं, कर सकते हैं। जी, पर अगर हम चार्ट को भी यूज़ करें, अपनी पत्री में क्या लिखा हुआ है उसको अपने एज़ अ वेपन, एज़ अ उसको टूल लेके उसको यूज़ करें, तो हमारा अपने लाइफ में जीवन को हम बहुत आगे, बहुत अच्छे से आगे बढ़ा सकते हैं, ऐसा हमारा मानना है। थैंक यू सो सर, लाइफ इज़ अ आपने बहुत मिक्स अच्छे ऑफ से एक्सप्लेन किया। डेस्टिनी। जी, थैंक यू। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन सर, बहुत लोगों की क्वेश्चन इससे रिलेटेड भी है। इज पाथ टू मैरिज प्रीडेस्टाइन्ड और फ्री विल्ड, एंड हु इज द अल्टीमेट मैच मेकर? हाँ, हाँ। वो इज़ द अल्टीमेट मेकर। तो शादी बहुत अच्छा क्वेश्चन है एक्चुअली। इसमें 2-3 बातें हैं जिसमें मैं हाइलाइट करना चाहूँगा। जब हम मैरिज के लिए आते हैं, तो हम क्या बात करते हैं, जाते हैं और किसी के पास प्रपोज़ल आता है तो हम गुना मिलान करते हैं। ये कि 32 गुण है, 36 गुण है, 28 गुण है, 36 तो खैर कम ही मिलते हैं, पर 32 गुण है या फिर 28 गुण है, 22 गुण है, और बोलते हैं 18 गुण से पर जो मिल जाए उसमें शादी करनी चाहिए, शादी कर देनी है, ऐसा माना, जैसा बोला जाता है जनरली। आई सेज एब्सोल्युटली नॉट राइट, ठीक है? वो बिल्कुल सही नहीं तरीका है, क्योंकि 32, हमने कितने केस स्टडीज़, कितने चार्ट 100 में, हज़ारों में, जहाँ पर भी 32 गुण मिलने के बाद भी, 28 गुण मिलने के बाद भी बंदे का, लड़का-लड़की का, वुमेन मैन का डिवोर्स हो गया। तो गुनाह इज़ नॉट अ क्राइटेरिया एट ऑल। ये चीज़ नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में बहुत अच्छे से बताई जाती है और दिखा समझ में आता है, और किसी भी पति में नहीं समझ में आएगा। हमने बहुत देखा, पर और तो नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में जब आप उस एनर्जी देखते हैं और सेपरेशन एनर्जी देखते हैं, कनेक्शन कैसा है और कैसे उस पे मैच मेकिंग करते हैं, तो वो फिर भी बहुत सक्सेसफुल रहता है। कंपेयर टू अगर हम नॉर्मल मैच मेकिंग की बात करें, नाड़ी एस्ट्रोलॉजी का मैच मेकिंग जो है 99% एक्यूरेट रहता है, इतना सेटल रहता है। कई लोग बोलते हैं हमें, अरे उन पंडित जी ने बोला कि आपकी शादी नहीं हो सकती, ये दोष है, वो दोष है। हम देखते हैं, अरे नहीं, ये दोनों को चार्ट तो अच्छा है, बिल्कुल अच्छा है, मत करिए, आप करिए। करते हैं और लोग अच्छे से रहते हैं।
और जहाँ बोलते हैं कि भाई गड़बड़ है थोड़ा ध्यान दो, तो चाहे 6-8 महीने बाद लोग आ भी जाते हैं, जी ये गड़बड़ हो गया, ये शादी में हो गया। तो हमने कहा था पहले ही बताया था आपको थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसमें कुछ प्रॉब्लम। देखिए एस्ट्रोलॉजर का क्या फर्ज है, आपको गाइड करना कि भाई किससे आपका सही मैच है, मेंटल, फिजिकल, हर तरह से आप 8-10 तरह के फैक्टर देखें, चाहे वो हेल्थ हो गई, वेल्थ हो गया, बहुत सारी चीजें देखते हैं आप, ठीक है। मेंटल मैप हो गया, आप कनेक्शन हो गया कैसा, तो इन सब चीजों को देख के आप बताते हैं। फिर मदर इन लॉ से, आजकल तो मदर इन लॉ की पत्री बहुत मिलानी पड़ती है, भाई फादर डॉटर इन लॉ मदर इन लॉ का अच्छा है कि नहीं है, वो भी बहुत जरूरी है। तो कहने का मतलब, और दोष होते हैं तो उसके लिए कुछ ध्यान साधना पूजा रेमेडी वगैरह बताई जाती है, जो भी कुछ बहुत सटल, और आप अपने घर में बिना कहीं भाग दौड़ के कर सकते हैं। तो अब क्वेश्चन है कि भाई मैच में क्या होना है, राइट मैच। बाकी अगर किसी की लाइफ में कोई घटना होनी होती है तो उसको टालना मुश्किल है, बट आपको अपना ये देखना है कि जिससे भी आप शादी कर रहे हो, क्या आपने एक सही एस्ट्रोलॉजिस्ट की, और जिसका कर्मा होगा ना, देखिए ये कर्म का देश है, यहाँ कर्म ही प्रधान है। तो जिसका कर्मा आपने कर्जा आपने खाई होगा, वो बच्चा आपके पास आएगा ही आएगा, आपको या तो खुशी देगा या दुख देगा, या आपके कर्म। तो कंटिन्यूस हमें अपने कर्मों को वॉच करना चाहिए। मैं कोई ऐसा गलत काम तो नहीं कर रहा हूँ जिससे किसी को दुख पहुंचे, जिससे किसी को हर्ट हो, जिससे किसी का बुरा हो, ऐसा तो नहीं कर रहा हूँ। अपने कर्म को वॉच करिए, जैसा आप करेंगे वैसा ही रिटर्न आएगा। और ये मरने के बाद नहीं, आजकल भगवान ने बहुत शॉर्टकट बना दिया है, अभी करोगे अभी मिल जाएगा, कुछ टाइम बाद मिल जाएगा या कुछ साल बाद मिलेगा, पर यही मिल जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि भाई मैच मेकिंग ठीक से कराइए, तो ये सब कॉन्फ्लिक्ट ना हो। इसकी लाइफ में जिसको आना होता है उसको कोई रोक नहीं सकता, ये बात तो है कि कर्जे का देश है, कर्म का देश है, जिसका कर्जा जिसने खास को देना ही पड़ेगा। जी ऋचा जी। थैंक यू सर, बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया। जी जी, मूविंग टू द लोगों के नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन आ रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं और से इससे रिलेटेड ही हैं। देखिए शादी करनी चाहिए, ये कोई पूछते हैं तो मैं कहता हूँ शादी देखिए ये आपकी चॉइस है। मैं कहूँगा वो आपकी कलयुग फ्री में विल। शादी कोई क्यों नहीं करना चाहता? हाँ, उसकी रीज़न क्या है कि भाई मैं ध्यान करना चाहता हूँ, मैं साधना करना चाहता हूँ, या मैं ये नहीं करना चाहता। तो देखिए वो, अगर आप इस सुख की प्राप्ति के लिए बोलते हैं हाँ, मैं शादी नहीं करना चाहता, तो मैं कहूँगा ये बिल्कुल गलत है। प्रभु प्राप्त अगर किसी को करना है ना, तो वो आप कह लीजिए कलयुग में गृहस्थ आश्रम में ही रहा है। देखिए कुछ एक्सेप्शन छोड़ दीजिए, जो ऋषि हो गए, जो ब्रह्मचर्य को हो गए, पर अगर किसी की कुंडली में लिखा है शादी होना है, तो शादी होती ही है। दूसरा क्या है कि मैं कह रहा हूँ गृहस्थ आश्रम में सबसे अच्छा मार्ग बताया। आप सब कुछ देखते हुए प्रभु की ध्यान करिए, साधना करिए, तो ये प्रभु प्राप्ति के लिए सबसे अच्छा और सुलभ है। ब्रह्मचर्य का मार्ग बहुत कठिन है, सबके बस का नहीं, ठीक है? बहुत कठिन है, बहुत लोग आधे में फिसल जाते हैं, तो उसको करिए। जी, चॉइस आपकी, आप जो भी करना चाहते हैं। बाकी देखेंगे कि दिखाएँगे तब बात चलेगा। जी, हाँ, ये बोलूँगा मैं ज़रूर, जिसको जो भी हमारे व्यू है, वो ट्विटर हमारा है संजीव_एस्ट्रो SANJEEV_ASTRO, उसको फॉलो करें, देखें, चेक करें कि भाई वहाँ मैंने प्रेडिक्शन जो कर रखी है वो ठीक है नहीं ठीक है। अब हमने जैसे 2 साल पहले ऋचा जी प्रेडिक्शन की थी मई में, इनफैक्ट जनवरी में जब कोरोना फैलने वाला था, तभी हमने प्रेडिक्शन की थी कि भाई कोरोना जो है जून, जुलाई, ऐसे अप्रैल, जून के बाद जाएगा 2022 में, तब कर दी थी। और मेरे को नहीं लगता दुनिया में किसी भी एस्ट्रोलॉजर ने शायद प्रेडिक्शन की होगी ऐसी, मेरे को नहीं लगता। शायद होगा कोई 1-2 हो तो हो, मैंने नहीं सुना एटलीस्ट कि उस टाइम में 2020 में की हो। और हमने देखा है सब लोग बोलते 3 महीने बाद चला जाएगा, 6 महीने बाद चला जाएगा, ऐसे बोलते थे लोग। अभी हमने कहा उसी टाइम बोल दिया था हमने, ये नहीं जाने वाला, और एग्ज़ैक्टली वैसा हुआ। अब जाके कोरोना गया है, क्योंकि हमने 2 साल पहले कहा था, ऐसी बहुत सारी भविष्यवाणियाँ हैं, आप देख सकते हैं। देखिए ये मैं क्यों, ठीक है? मैं इसलिए बोल रहा हूँ ताकि ज्योतिष पे लोगों का विश्वास आ पाए। आजकल बिल्कुल, ज्योतिष की जो पिछले बिल्कुल। दशकों में ना ज्योतिष की गरिमा थोड़ी डाउन, पर्सनल स्वार्थ की वजह से, कुछ भी कह लीजिए, ठीक है? किसी ने कहीं कुछ करना है, कुछ हम उन सब बातों में नहीं जाएँगे, बट इसकी गरिमा को बचाने के लिए और इसकी एक्यूरेसी को देने के लिए मैं बोलता हूँ देखिए, आदमी कहीं भी जाता है बाज़ार में तो 10 चीज़ ठोक के चीज़ खरीदता है।
तो किसी भी एडवाइज़र के पास चाहिए तो पूरी रिसर्च करके जाइए, ताकि आपको पता हो वो कैसा है, क्या है, तो क्या है कि आपको फिर फ़ायदा होगा। ऐसे कहीं चले जाइएगा तो फिर बात नहीं, प्रूफ़ होना चाहिए हर चीज़ का। आदमी देखिए जो है साँच को आँच क्या बात है बेसिकली। जी। जी, बिल्कुल और करेक्ट गाइडेंस जहाँ पे भी मिले, वहाँ पे ही अप्रोच करना चाहिए। बिल्कुल, हर जगह जहाँ पे भी राइट गाइडेंस मिलती है, वहाँ जाना चाहिए और वो कोई भी हो सकता है। आपके घर परिवार में भी हो सकता है, नेटवर्क में भी हो सकता है, आपके गुरु भी हो सकते हैं, एस्ट्रोलॉजर भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। जहाँ मिलता है, जहाँ आपको विश्वास है, सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? जहाँ आपको विश्वास है। हाँ जी। यस सर एंड जैसे कोविड के बाद बहुत सारे लोगों की जो जॉब है वो चली गई, वो न्यू बिज़नेस को अप्रोच कर रहे हैं, सो मतलब उनके लिए क्या एडवाइस आपकी रहेगी? तो देखिए वैसे तो देखिए पर्टिकुलर चार्ट ना इंडिविजुअल चार्ट के हॉरोस्कोप से बता सकते हैं, पर जनरल एडवाइस में सबके लिए मैं ये बोलूँगा कि देखिए आप ये समझ आपकी लाइफ में कोई भी मिज़री मतलब जॉब नहीं है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, इमोशनल प्रॉब्लम है, मैरिज प्रॉब्लम क्यों आती है? कहीं न कहीं आपकी लाइफ में वो चीज़ मिसिंग है, ठीक है? जो पॉजिटिव एनर्जी है वो मिसिंग है, तभी वो प्रॉब्लम आई है और सारी प्रॉब्लम का कहीं न कहीं जड़ 6th हाउस, 8th हाउस एंड 12th हाउस का कनेक्शन है, कनेक्टिव एनर्जी, कलेक्टिव एनर्जी। 6 होता है जैसे मैंने पहले ही बोला डिज़ीज़, डेथ और लिटिगेशन। 6 हाउस का और भी मतलब है एनिमी है, सर्विस है बहुत 6 का मतलब सेवा भी होता है। अगर ये डिज़ीज़, डेथ और लिटिगेशन ज़्यादा है, कर्जा ज़्यादा है, बीमारियाँ हैं, लिटिगेशन है, मुकदमे हैं, तो सेवा करिए और सेवा तन, मन, धन तीनों से आ सकती है। शरीर ठीक है या शरीर में प्रॉब्लम है ना, तो शरीर से करिए, अगर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है, ज़्यादा में तो कर नहीं पाइएगा तो क्योंकि शरीर की व्याधि शरीर से जाती है, वो बहुत ही देखिए स्वयं ब्रह्मा जी को भी नहीं पता विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट कि किस कर्म का किसका वो है फल बहुत ही गहन है। तो मन का कर्म मन से, तन का कर्म तन से सकता है। तो कर्मों का तन मन धन, तन दीजिए, मन किसी को अपलिफ्ट करिए, किसी को अच्छा करिए, ठीक है? मोटिवेट करिए, किसी को अच्छा बोलिए। हमारे संजीव मलिक साहब कितना मोटिवेट करते हैं, पूरी दुनिया को कर रहे हैं। तो ये करने से ये मोटिवेशन करिए, ये बहुत बड़ी सेवा है। फिर धन, किसी भी काम में आप अगर कोई कोई भला का काम हो रहा है उसमें धन कीजिए, तो मैं कहता हूँ जितना आप दान की बहुत महिमा है, जितना आप जो चाहिए ना, आपको उससे ज़्यादा मिलता है। मतलब जितना आप देते हैं, आप समझ नहीं सकते कि आपको कितना मिलता है। इसलिए दान हमेशा करना चाहिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए 12th हाउस भी दान का है और सेवा भी आप दान के थ्रू कर सकते हैं। तन, मन, धन। फिर 8th हाउस बोलता हूँ ऑब्स्टिकल, हर काम में कहीं न कहीं अड़चनें आती हैं, थोड़ा योगा, प्राणायाम, पद्म साधना ज़रूर करें, बहुत पावरफुल है। लाइफ से 8 हफ्ते में चेंज हो सकती है, आप करने लग जाएँ तो। फिर आप थोड़ा 12th हाउस होता है लॉसेस एक्सपेंडिचर और पैसा बचता नहीं, टिकता नहीं, घर में बरकत नहीं है, बिज़ हैं, शरीर का लॉस, मन का लॉस, तन का लॉस। तो आश्रम, आश्रम रेगुलर विज़िट जिस गुरु पे आपका फ़ेथ है, जाइए, जहाँ पर भी आपको लगता है, ठीक है? मैं तो देखिए बैंगलोर आश्रम जाता हूँ, श्री श्री रविशंकर जी का आश्रम जाता हूँ। तो जहाँ पर भी आपको फ़ेथ है, जहाँ भी आप जाते हैं, आप जाइए। जहाँ पर भी आपको कोई सच्चा गुरु मिलता है, वहाँ जाइए, आश्रम में रहिए, कोर्स करिए, स्पिरिचुअल कोर्स करिए, बहुत फ़ायदा होता है, ठीक है? पर हाँ, गुरु बनाना भी ना ठोक-ठोक के, मैंने जैसे बोला ना, पूरा विश्वास हो, तो बनाइए। जब एक बार गुरु को समर्पित हो गए, तो फिर उनके बताए हुए रास्ते पे चलिए। फिर डाउट नहीं आना चाहिए मन में, ठीक है? तो 6, 8, 12 की एनर्जी को आप चैनलाइज़ करिए। तो आपकी लाइफ़ में थोड़ा सेवा, थोड़ा साधना, ध्यान और थोड़ा कोर्सेज़, ठीक है? ये अगर आप करेंगे तो आप अपनी लाइफ़ में देख लीजिए विदिन नो टाइम, मैं कह रहा हूँ विदिन नो टाइम इन फ्यू वीक्स यू कैन सी लॉट ऑफ चेंज, ठीक है? तो ये ज़रूर करिए और जैसे मैंने कहा दान का बहुत बड़ा है, तो दान ज़रूर करिए। देखिए लाइफ़ में जो चीज़ आपके पास नहीं है ना, उसको देना शुरू कर दीजिए, सिंपल रूल है। वो अपने आप अबंडेंस में आएगा, यूनिवर्स उसको फिर देगा आपको। जो चीज़ के में प्यार आपको नहीं मिलता, प्यार देना शुरू करिए, ठीक है? सबसे प्यार से बोलिए अच्छे से तो देखिए आपको फिर प्यार मिलना शुरू रिस्पेक्ट नहीं है, रिस्पेक्ट देना शुरू करिए। जो चीज़ नहीं है आपको, उसको देना शुरू करिए। आप पैसा नहीं है, लेकिन वो जितना भी पैसा कमाते हैं ना, उसमें थोड़ा 10%, 20%, 10% ही देना शुरू करिए। आप देखिए कितना चमत्कार होता है आपकी लाइफ़ में। और जॉब वगैरह है, वो सब चीज़ें थोड़ा ध्यान साधना करेंगे, आप देखेंगे
कुछ ही हफ्तों में, कुछ ही महीनों में, अगर किसी की नहीं है, अगर आप ये फॉलो करते हैं, स्पेशली अगर मैं बोलूँगा कि भाई रात को ध्यान करके सोएं, थोड़ा-सा हल्का ध्यान करें, कुछ मंत्र चला लें, कुछ मंत्र चला लें, अच्छा रहेगा। हल्के वॉल्यूम में अगर चला सकते हैं तो, और नहीं तो ध्यान करके हल्का सा, जिस पे भी विश्वास है उनका ध्यान करिए, उनको सरेंडर करिए अपनी, तो खाली होके सोइए, तो उससे बहुत फ़ायदा मिलेगा। भाई ओम कुछ नहीं आता, ओम नमः शिवाय कर लीजिए, ओम नमः शिवाय करते-करते सो गए। तो सारे प्लैनेट्स के ऊपर कौन है? शिव जी। तो एक शिव जी की पूजा करने से ही, ओम नमः शिवाय करने से ही सारे प्लैनेट पैसिव मतलब कंट्रोल हो जाते हैं। तो भाई आप ये मत करिए, वो मत करिए। तो जनरल मैं बता रहा हूँ, रात में आपको जो बहुत पावरफुली काम करेगा, और आप 6-8 हफ्ते करके अब ज़रूर मेरे को बताइएगा, इस चाहे ट्विटर में है, चाहे सोशल मीडिया में मेरा नाम सर्च कर लीजिए, मैं जाऊँगा आपको। ज़रूर बताइएगा कैसा रहा। 6-8 हफ्ते आप कर लीजिए, ओम नमः शिवाय रात को एक माला कर लिया आपने, और ध्यान करके सो गए, अपनी जो वरीज़ है सरेंडर की, और पॉजिटिव का बहुत है कि भाई मेरे पास जॉब नहीं है, अगर सपोज़ करो, तो मेरे को जॉब मिल गई, ऐसा सोचें। ध्यान करें, मेरे को जॉब मिल गई, और आप देखिए, और कर्म ज़रूर करिए। आप देखिए कैसे समझ होता नहीं होता, बिकॉज़ एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज़ वाइब्रेशन एनर्जी। ये सबकॉन्शियस माइंड है, ये बहुत पावरफुल है। भगवान कहीं हैं, महाराज कहते थे, टेम्पल जो है आपके शरीर के अंदर भगवान वास करते हैं, शरीर, तो अपने शरीर को स्वस्थ रखिए, खूब योगा प्राणायाम करिए। आप देखिए कोई ऐसी दुनिया में चीज़ नहीं जिसको आप कम कर सकते। जहाँ कॉन्फ्लिक्ट है, वहाँ कहता हूँ, मैंने जैसे कहा कि एक आदमी को बॉल, अगर आप गेम खेलते हैं, तो बॉल जब आप फेंकते हैं, दूसरा फेंकेगा तभी आएगा। तो जो कॉन्फ्लिक्ट का आर्गुमेंट है ना, आपने किसी को फेंका, तो दूसरे को बॉल ड्रॉप करनी, वो वापस नहीं फेंकनी, चुप रहिए। ऐसा नहीं कि चुप रहने से आपकी गरिमा भी कम हो जाएगी, चुप रहिए, फिर बाद में जवाब दीजिएगा जब टाइम आए तो कोई बात नहीं, खुद अपने आप ही बंदा खुद आएगा सॉरी बोलने, ठीक है। तो ये बहुत महिमा, चुप रहने की और साइलेंस की भी बहुत महिमा है, ठीक है। ये करिए जी। अच्छा जी। जी सर, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत सारे लोग बिलीव नहीं करते हैं एस्ट्रोलॉजी में, तो आपकी क्या व्यूज़ हैं उनके लिए? बहुत सारे एस्ट्रोलॉजी, देखिए मैं ये बोलूँगा कि आप बोलिए मैं विश्वास नहीं करता, तो उसे विश्वास करने से क्या होगा? सूरज के क्या, ठीक है? मैं सूरज पे विश्वास, तो सूरज ना विश्वास करने से क्या, उसकी रोशनी कम होनी शुरू हो जाएगी? मैं कह रहा हूँ बिल्कुल विश्वास मत करिए, विश्वास करने की ज़रूरत ही नहीं, ठीक है? पर किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से जाके जो बोलता है, उस बातों को सुनिए और उसको फॉलो करिए। और जो अच्छा एस्ट्रोलॉजर होगा ना, पहले तो आपका पास्ट बता देगा, ठीक है? पास्ट कैसा है, पर ज़रूरी नहीं है जो सब लोग पास्ट बता पाएँ, वो फ्यूचर भी बता पाएँ, ऐसा ज़रूरी नहीं है। पर अगर कोई आपका पास्ट बता सकता है, तो फ्यूचर भी बता सकता है, ठीक है? अगर एक्यूरेटली बताता है तो। प्लानिट्स तो वही घूम फिर के आते हैं, अलग-अलग कॉम्बिनेशन। तो अगर आपको लगता है कि भाई मुझे विश्वास नहीं है, कोई बात नहीं, आप आप किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर को जा सकते हैं, चेक कर सकते हैं अपना पत्री। मुझे तो विश्वास नहीं है, अब मुझे बताइए मेरे बारे में, वो बता देगा, तब शायद आपको विश्वास आ जाए। तब भी ना हो तो फ्यूचर के इवेंट बता देगा कि भाई देखो इस टाइम में शादी हो जाएगी, इस टाइम में जॉब मिल जाएगी, इस टाइम में जॉब चली जाएगी, ये भी बता सकता है, कुछ भी बता। तो जब वो हो तब विश्वास कीजिएगा। देखिए ये तो साइंस है ना, ये तो अच्छा, किसी को एक बात बताइए कि आपने अपनी पत्री दी, डेट टाइम प्लेस, उसको एग्जैक्टली कैसे पता है कब आपने जॉब ज्वाइन किया, कब आपने जॉब छोड़ा, कब आपने ट्रैवल किया, क्या आपकी लाइफ में कब बीमारी आई, कब आपने कोई भी इवेंट आपकी लाइफ में, कहीं ना कहीं कोई तो साइंस है। और एस्ट्रोलॉजी मैंने कहा बहुत पुरातन है, इसका तो वेदों में भी जिक्र है, तो बहुत एंशिएंट है, बहुत एंशिएंट है। तो इसमें विश्वास ना विश्वास की बात ही नहीं है। आपको लाइफ में प्रॉब्लम है, तो इसका एज ए जीपीएस, ऐसे गूगल में जीपीएस यूज करते हैं, एस्ट्रोलॉजी एज ए जीपीएस को जरूर यूज करिए, ठीक है। हाँ जी, मैं ये बोलूंगा। तो इससे और कोई भी परेशानी ना लाइफ में, चक्रा ध्यान नहीं होता, अरे आपको इतने सारे ध्यान है यूट्यूब में दिए हुए हैं, चक्रा मेडिटेशन है, भाई आप सर्च करिए, गाइडेड करिए, आप खुद मत करिए, गाइडेड करिए। गाइड देखिए, जो भी नए ध्यान है उनको बोलूंगा गाइडेड मेडिटेशन क्या करें। गाइडेड मेडिटेशन में आप प्ले कर देते हैं और वो बोलते हैं आप यहाँ ध्यान लीजिए, यहाँ ध्यान लीजिए, तो आसान हो जाता है। जब वो पक जाए तो फिर और आगे मैं कहूँगा, आगे बहुत सारे लोग कुछ कराते हैं, ध्यान सहज समाधि कोर्स है, बहुत सारे कोर्सेज लोग कराते हैं। तो ध्यान किसी से सीखिए तो अच्छा रहे, बहुत बढ़िया।
जी। जी, और आजकल जी, तो बहुत सारे कोर्सेज़ ऑनलाइन अवेलेबल हैं, सो आप उनको जॉइन करें। इवन संजीव सर की लाइव हाँ, मेडिटेशंस मॉर्निंग, इवनिंग में रहती है, फ्री ऑफ कॉस्ट है वो भी आप जॉइन कर सकते हो। बहुत बढ़िया। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, मैंने देखा उनका मेडिटेशन बहुत अच्छा कराते हैं। बिल्कुल जी, देखिए सब लोग जॉइन करें, मेडिटेशन उसका लिंक वगैरह शायद हो सकता है इसी में डाल दीजिएगा जो भी है। तो लोग जी, जॉइन करें, देखें, मेडिटेशन करें, उससे बहुत फ़ायदा होता है। देखिए ध्यान करिए ना, ध्यान से अच्छी कोई चीज़ नहीं। कर्मों को फास्टेस्ट डिसॉल्व करने का तरीका सिर्फ़ एक है, वो है ध्यान। और कोई तरीका नहीं है दुनिया में। देखिए मैं बताता हूँ आपको, जैसे मैंने 6-8 बार के बताया ना, उसके अलावा यूनिवर्स है, पूरे यूनिवर्स में 2 ही रेमेडीज़ हैं। क्या रेमेडीज़ हैं? एक गुरु की दया। की दया कैसे मिलती है? गुरु का दर्शन और गुरु भक्ति। गुरु की दया के 2 रास्ते हैं। एक दर्शन ऑनलाइन या ऑफलाइन दर्शन करिए। आजकल ऑनलाइन हो गया तो उसमें मिलता है। जितना ऑफलाइन आप जाइए 200, 500, 1000 किलोमीटर जाइए, तो ऑनलाइन या ऑफलाइन दर्शन करिए। उससे कर्म करते। दूसरा गुरु की दया कर, गुरु दर्शन तो दर्शन करिए। दूसरा भक्ति। गुरु भक्ति क्या मतलब हुआ? ये नहीं कि आपको आरती करनी है। गुरु भक्ति मतलब जो गुरु ने बोला उसको डिट्टो वैसे फॉलो करना है बिना दिमाग लगाए। ये गुरु भक्ति है। उन्होंने बोला उल्टा चलो तो उल्टा चलो। ये गुरु भक्ति है। मतलब क्या हुआ? जैसा बोले वैसा करो बिना अपना मन और दिमाग लगाए। उन सबको ताक पे रख दो। जब गुरु भक्ति करोगे ना, मैं कह रहा हूँ दूसरे प्लेनेट के परे चले जाओगे। गुरु भक्ति फुल चीज़ है। फिर प्लेनेट और पृथ्वी नहीं काम करेगी, बिल्कुल नहीं। बहुत पृथ्वी देखी है हमने, जो गुरु भक्त हैं, बहुत लोगों की पृथ्वी देखी है। पृथ्वी कुछ और कहती है, लाइफ में कुछ और हो जाता है। ये सिर्फ किस नतीजा है? सिर्फ भक्ति का। भक्ति करोगे ना, भक्ति करोगे तो बियॉन्ड चले जाओ प्लैनेट्स और स्टार्स के। तो सबसे इम्पोर्टेंट, ठीक। दूसरा रेमेडी है डीप लॉन्ग मेडिटेशन, ध्यान करना। लंबा गहरा ध्यान। गहरे ध्यान के लिए अलग-अलग विधियाँ हैं। सुबह भी करते हैं आप, ब्रह्म मुहूर्त में भी करते हैं, रात में भी करते हैं। जैसे बोला गया चार का टाइम बड़ा ब्रह्म मुहूर्त होता है, तो उसमें कुछ जो बोलते हैं, करते हैं, 3 साढ़े 3 या जो भी टाइम होता है, इस टाइप में आप करिए, ठीक है। और अपनी लाइफ में गुरु ज़रूर बनाइए। बिना गुरु गति नहीं है। बिना गुरु के गति नहीं है, तो गुरु ज़रूर बनाइए अपनी लाइफ में, बहुत इम्पोर्टेंट है। आप चाहे किसी में विश्वास करें, ना करें, कलयुग में अगर कुछ आपको पार करेगा तो वो गुरु ही पार करेंगे और कोई पार नहीं कर सकता। समझ रहे हैं ना? तो अ, कितना कबीर साहब ने कितने-कितने दोहे लिखी हैं गुरु की महिमा पे। हाँ, गुरु का ऐसा है कि गुरु की महिमा जो है बखान नहीं की जा सकती। सब धरती कागज हूँ, लिखनी सब बन रहा है। सब धरती कागज हूँ, लिखनी सब बन रहा है। समुंदर की मसी करूँ, सातों समुंदर की स्याही बना लूँ, सारे जंगल जितने हैं उसका पेन बना लूँ और सब धरती को कागज बनूँ, तब गुरु का गुण कभी नहीं लिख सकते। ठीक है? तो अगर आपने अपनी लाइफ में किसी सच्चे गुरु को बना लिया, आपकी लाइफ आधी तो वहीं से सही हो जाएगी। देखिए हम लोग भी मार्गदर्शक हैं, उस यात्रा पे चल रहे हैं, ठीक है? और मैं बोलूँगा आप लोग भी उस यात्रा पे चलिए, ठीक है? हाँ, रात को ये थोड़ा ध्यान करिए, योग निद्रा, थोड़ा ओम नमः शिवाय करिए और सोइए, सरेंडर करके सोइए खाली होके। जब खाली होके सोइएगा ना, तो यूनिवर्स आपकी इच्छाएँ अपने आप ही करेगा पूरा। किसी से द्वेष नहीं, रात गई बात गई। रात गई बात गई मतलब क्या है? भक्त होता है वो तो हर मिनट मरता है और हर मिनट जीता है। तो एक दिन तो हर दिन मर रहे हो आप, हर दिन जी रहे हो। तो एक दिन की चीज़ है वो दूसरे दिन नहीं लानी है। दूसरे दिन वही कलेश, वही कराहत, वही नेगेटिव चीज़ें आपने अगले दिन, रात गई बात गई। और जो सच्चा भक्त होता है तो हर पल मरता है, हर पल जीता है। और देखिए ध्यान जो है ऐसा नहीं है कहीं आपको बहुत जगह जाना पड़ेगा तो ध्यान होगा। ध्यान आप चौबीसों घंटा कर सकते हैं। जब फुर्सत हो अपने काम से आँख बंद करो, 2 मिनट के लिए, 3 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए ध्यान कर लो। जिस पे भी विश्वास है उसको ध्यान कर लो। सब तो जाएगा उनके पास। देखो कई लोग बोलते हैं हमसे ध्यान नहीं होता जी, हम ध्यान नहीं कर पाते। क्यों? वो सोचते हैं सुबह ध्यान करें, शाम ध्यान करें, सुबह निकल के किसी काम, निकल के किसी काम। अब ध्यान चला गया उसपे। जब भी मौका मिले, रात को सोने टाइम मिले, सुबह नहाने टाइम मिले, कभी भी मौका मिले, जब मौका मिले तब 5 मिनट आँख बंद कर लो, वो भी काउंट हो जाता है। उससे भी
कर्म हल्के होते हैं। सिर्फ़ एक ही तरीका है, बोलो ये पीपल पानी चढ़ा दो, किसी इधर चले जाओ, कोई वहाँ चले जाओ, कुत्ते को खिला दो, गाय को खिला दो। देखो कुत्ता, गाय को, जीवों को तो ऐसे ही खिलाना चाहिए, ठीक है? इन सब से बात नहीं बनेगी, जो 180 डिग्री चेंज हो जाए। करना चाहिए, मना नहीं, वो किसी स्वार्थ की वजह से, वो ह्यूमन कर्तव्य समझ के करना चाहिए। अपना कर्तव्य वो किसी का रेमेडी की तरह नहीं करना चाहिए, कि भई अब तो मेरा काम हो गया, अब कुत्ते को खिलाना बंद, गाय को खिलाना बंद, ऐसा नहीं। वो ऐसे ही करिए, वो अच्छा कर्म है, पुण्य कर्म वो कराइए, खिलाना-पिलाना जानवर को, आदमी को दान दक्षिणा देना, पिलाना ये सब अच्छा है। सत्कर्म कर्म करिए और ध्यान, जिस पे भी विश्वास है, उसको 24 घंटे अपने मन में ध्यान करते रहिए, अगर लाइफ में मिरेकल देखने हैं तो। लाइफ में मिरेकल देखने हैं ना, तो क्यों? क्योंकि मिरेकल क्या बोलता है, यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस क्या बोलता है, सूत्र क्या बोलता है, जिसको ध्यान करोगे उसके, जिसको ध्यान करोगे उसके जैसे हो जाओ। तो जिसको भी ध्यान करोगे, तो मिज़री को ध्यान नहीं करना है, मोह को ध्यान नहीं करना है, माया को, सिर्फ़ गुरु को या भगवान को, जिसमें भी आपके इच्छा, उसको ध्यान करिए तो क्या होगा? उनकी सब चीज़ें आपकी आप में आ जाएँगी। सब चीज़ें ऑटोमैटिकली, जो अबंडेंस उनमें है, वो अबंडेंस आप में भी आ जाएगा। जो पावर उनमें है, वो पावर आप में भी आ जाएगा। ये तो अच्छा, अच्छा जिनको ध्यान करते हो, क्या सूत्र है? उनका ध्यान भी आपकी तरफ आता है। हम सोचते हैं भगवान मिलते नहीं, भगवान याद नहीं करते। अरे भगवान तो आप ही हो, अंदर ही हो भगवान। आप आँखें बंद करिए, अंदर जाइए। अहम ब्रह्मास्मि, ठीक है? तो आप आगे जाइए, अंदर बंद करिए, माँगिए, आपको जो माँगना है सब मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? अगर देखिए मैं बोलता हूँ कि कलयुग में, मैं कहता हूँ ध्यान पे ध्यान दो ताकि धनी हो पाओ। और धन 8 तरह के होते हैं, समझ रहे हैं? धन जो है, हेल्थ हो गया, वेल्थ हो गया, स्त्री धन हो गया, पुत्र धन हो गया, 8 तरह के धन बोले गए हैं। तो कलयुग में सबसे ऊँचा सूत्र क्या है? ध्यान पे ध्यान दो ताकि धनी हो पाओ। और धन हर तरह का होता है, ठीक है? तो किस पे ध्यान दो? जिसको मानते हो, जो यूनिवर्स में है, जो गुरु हैं आपके। भाई हम तो कहते हैं गुरुदेव पे, हम तो गुरुदेव से जुड़े हुए हैं, तो गुरुदेव पे ध्यान करो, या जिस पे भी, जो भी आपकी श्रद्धा है, शिव जी पे, शक्ति पे, जिस पे भी आपका मन है, उस पे ध्यान करो। और मैं कहता हूँ, जैसे मैंने बोला, 2 से 5 मिनट का, कम से कम 5 मिनट, 3 से 5 मिनट का ध्यान भी काउंट होता है। तो ध्यान करिए। और फिर अगर 15-20 मिनट, आधा घंटा कर पाएँ, बहुत अच्छा। इसी से आप कर्म चेंज कर सकते हैं। और रन करने का स्पेसिफिक महत्व है। खाली हो जाइए, जिसने गलती की, जो गलती हुई माफ़ करिए, आगे बढ़िए, खाली होइए, होके के एक माला ले लीजिए, नमन करिए, खाली होके सबको माफ़ करके, और ग्रेटफुल, ग्रेटफुल होना बहुत ज़रूरी है। जो दिया वो बहुत अच्छा है, हम क्या भूल जाते हैं। हमको इतनी सारी चीज़ें दी हुई, पर जो बाहर जो है ना, घर दिया, गाड़ी दिया, सब कुछ दिया, तो बाहर जो जो किसी पड़ोसी की जो कोई लग्ज़री गाड़ी होगी, वो उसपे नज़र हो, ऐसी गाड़ी मेरे पास होना चाहिए। जो है उसके लिए ग्रेटफुल, तो जो है उसके लिए ग्रेटफुल रहिए। किसी दूसरे की ज़रूरत नहीं है। जब ग्रेटफुल रहेंगे ना, तो अपने आप चीज़ें आएँगी आपके पास, कि जो दिया मालिक आपने बहुत दिया, बहुत दिया, मैं आई एम सो थैंक टू यू। धन्यवाद ज़रूर अदा करिए, और जो माँगना है माँगिए और छोड़ दीजिए। मालिक एक सूत्र ध्यान रखिए, या तो ये जो माँग रहे हैं ना, या तो ये या इससे अच्छा, जो आपको अच्छा लगे वो मुझे दे दीजिए। तो बिकॉज़ ही नोज़ द बेस्ट, यू डोंट नो। या तो ये जो मेरी इच्छा है, या इससे अच्छा आपको जो समझ में आए वो मेरे को दे दीजिए। अगर माँगना माँगिए, कोई बात नहीं। जैसे माँ-बाप होते हैं, वैसे ही प्रभु भी आपके माँ-बाप ही, माँ-बाप भी बिल्कुल माँग सकते हैं, कोई बात नहीं। पर उनकी बताई हुई बातों पे भी चलिए, उनको ध्यान भी करिए, उनको याद भी करिए। जी ऋचा जी, मैं ये बस बोलना चाहूँगा। जी, थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। हमारे बहुत सारे व्यूअर्स की बहुत सारी क्वेरीज़ आ रही हैं। प्रिंसी जी, आपकी क्वेश्चन मैंने देख ली है, बट आप सर से पर्सनली कॉन्टैक्ट कर सकते हो, क्योंकि आपकी डिटेल्ड एनालिसिस करनी होगी, उसके बाद फिर बता सकते हैं। ठीक है? बाकी के भी जो हमारे हाँ, व्यूअर्स हैं, कुछ की जिनको जिनको भी जैसे अगर करना है, वो मेरा नंबर है वेब पे। मुझे देखिए फ़ोन तो करिएगा, व्हाट्सएप कर सकते हैं आप लोग, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, कर सकते हैं, तो हम कोशिश करेंगे, क्योंकि बहुत मैसेज आते हैं, हज़ारों में मैसेज आते हैं, तो थोड़ा डिले हो सकता है। पर या आप व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, और तो फिर हम देखते हैं कैसे इसको एड्रेस करते हैं, क्या करते हैं, ठीक है? उसको टाइम देना पड़ेगा, जी, करना पड़ेगा।
जी, बिकॉज़ जी हाँ, बस यही बोलना। वो फिर डिटेल्ड एनालिसिस होती है, आपकी डिटेल्स भी हमें चाहिए होंगी, तो आप नंबर हम मेंशन कर देंगे, आप वहाँ पे कॉन्टैक्ट करके अपनी डिटेल्स भेज करके फिर गाइडेंस ले सकते हैं। जी, 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 बिल्कुल, सर बिल्कुल। ऑलरेडी आपने बहुत सो सारी रेमेडीज़ बता दी हैं और बहुत अच्छे से आपने गाइड किया है, बट व्हाट वुड बी द लास्ट पीस ऑफ एडवाइस व्हिच यू वुड लाइक टू शेयर विद आवर व्यूअर्स? आई थिंक लास्ट पीस तो यही जो मैंने बोला, आई थिंक वही उसी पे मैं थोड़ा रिइटरेट ये करूँगा कि लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है, आपको लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है, वो परमात्मा को सरेंडर करिए। लेट हिम ड्राइव यू द वे ही वांट्स। ठीक है? लेट ड्राइव द कार। देखिए कार आप ड्राइव करते हैं, अगर आप उसमें बार-बार ड्राइवर के हाथ में तो पे हाथ सरेंडर करो। सर वॉइस ब्रेक हो रही थी। सर वॉइस इज़ नॉट ऑडिबल। सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, आई थिंक कोई नेटवर्क इश्यू है। So now we have come to the end of today's session. Thank you so much, sir, for sharing your precious knowledge with us. Thank you to our viewers for coming and spending your valuable time with us. For more such valuable information, stay connected with us. Thank you. Namaskar.